Hello everyone, welcome back to our channel Economics Talk. In the previous class we have discussed on the topic of simple index number, where we have discussed the numericals. Today in the part 2 of that section we are going to discuss the weighted index number, and under this again it is divided into two parts. So in the first that we have weighted aggregative index number, which is again divided into three parts. I have written the formulas, I have discussed all the formulas in the previous classes. So if you want to check it out, you can just go to the playlist and check the videos. Okay, the next part is weighted average of price relative, where P01 is equal to summation RW divided by summation W, where R is the price relative, right? So price relative is P1 divided by P0 into 100, and weight is equal to P0 Q0, given that weight is not explicitly given in the question. If a weight is given directly, then we have to use the weight. Otherwise, if it is not given, we have to find it out like this. Okay, now let's do the numerical on this. So the next question for this weighted index number, we have this. We have been given 4 commodities, and then we have been given the base year price, current year price, base year quantity and current year quantity. Now for weighted index number we need to find out what Laspeyres, Pasquier and Fisher's index number. For this we know the requirement of the formula. So for this we need to first find out P0 Q0, then we need to find out P0 Q1, then we need P1 Q0, then lastly we need P1 Q1. So let's find out all this. So P0 Q0. Now while doing the formulas, while doing the numerical, the main problem you will have is doing the multiplication. Here you might confuse the things. Okay, like for this P0 Q0 you need to multiply this and this, but sometimes what happen, you will multiply this or this, you will multiply this or this. So from my side I will be suggesting you to keep the fingers. Okay, मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे कर रही हूँ ना, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा ऐसे रख के करना, बट मैं जब कॉपी में करती हूँ तो मैं ऐसे ही फिंगर्स रख लेती हूँ. लाइक दिस आर द बार्स आई विल बी फोकसिंग माई आईज ऑन, नथिंग एल्स. ठीक है, मैं इसी 2 चीज़ पे फोकस करूँगी और बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं करती हूँ. फिर इसमें करूँगी तो इसी 2 चीज़ पे फोकस करूँगी, बाकी किसी पे फोकस नहीं होगा. ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी करोगे तो आप लोग को भी इजी होगा. अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे करने में तो दैट्स नो इशू, बहुत अच्छी बात है. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन यूज़ दैट फॉर्मूला. फाइन. ओके, लेट्स डू दिस. सो 20, 80, 180, 18, 16, 24, 32. Now next P0 Q1, this and this. So 30, 100, then 7, 210, then 9, 18, 27, 36. Now P1 Q0. So 40. Let's see, this is what happens, you get confused. P1 Q0. So 120, then 6, 12, 18, 24, and the last is this 400, and this P1 Q1, this and this. So we have 60, we have 150, then we have 7, 14, 21, 28, then 9 and 50, that is 450. Okay, after finding out all this P0, Q0 and the rest like this, we have to make the summation of all of them. So make a summation of all of them. You have to write this. Okay, I don't have a space here, but like this you have to write, equal to summation of P0 Q1 equal to summation of P1 Q0 equal to summation of P1 Q1 equal to. Okay, so let's make a summation. 300, 400, 480, 500, 580, 600, right? It can be wrong. Okay, I'm doing the calculation on my mind. So 100, 300, 600, 660, 670, 700. Next P1 Q0, 400, 500, 600, 700, 740, 780, 800. Last is this
400, 500, 600, 700, 800, 880, 940। ठीक है, चलो ये निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों को फॉर्मूलाज में पुट कर देंगे तो वी विल सिंपली गेट द आंसर। फाइन, सो लेट्स, आई एम राइटिंग ऑल दिस इन द शॉर्ट फॉर्म। ओके, सो लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर में क्या होगा, लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर में वी नो इट इज़ इक्वल टू समेशन P1 Q नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट Q नॉट इंटू 100। सो इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होगा, P1 Q नॉट कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा 800, P नॉट Q नॉट 600 इंटू 100। तो इसको सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 3 400 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू हाउ मच, 133.33। ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, दैट इज़, मैं यहाँ पे करने वाली हूँ उसको। ठीक है, शॉर्टकट। सो यहाँ पे ये Q1 बन जाएगा, सो इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ये पास के का P बन जाएगा। सो ये P हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। सो P1 Q1 कहाँ है हमारे पास में, ये रहा। सो 940 डिवाइडेड बाई P नॉट Q1 इज 700 इंटू 100। सो यहाँ पे ये गया, दिस विल 900 124, ये कैंसिल नहीं होने वाला। सो इट विल बी 940 डिवाइडेड बाई 7, वी विल हैव हाउ मच, 124, 7 14 21 3 7 14 21 28 1, काइंड ऑफ लाइक दिस ओनली। ठीक है, 3 हो गया 4। ठीक है, सो ये आंसर आने वाला है पास्के के मेथड में। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दिया है। फॉर्मूला हम लोग के पास था ही, P1 Q1 का वैल्यू कितना मिला है हम लोग को, 940, तो 940 हो गया। यहाँ पे P नॉट Q1 कितना हुआ है, 700, सो 700 इंटू 100, यू जस्ट डू द मैथ्स, यू विल गेट द आंसर एज 134.14। ठीक है, नाउ लास्ट क्या है हमारे पास, यस, लास्ट वी नीड टू डू इज व्हाट, फिशर्स इंडेक्स नंबर। सो फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, Fisher's index number is equal to root under summation P1 Q naught divided by P naught Q naught into summation P1 Q1 divided by P naught Q1 into 100। यहाँ पे 100 क्या होता है, बाहर होता है। सो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो कितना हो जाएगा, P नॉट Q नॉट, P1 Q नॉट इज 800, P नॉट Q नॉट कितना है 600 इंटू P1 Q1 इज़ 940, यहाँ पे कितना हो गया, P नॉट Q1 इज़ 700 इंटू 100। अब यहाँ पे आप लोग केयरफुल रहिएगा कि यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट होगा तो पता चल ही जाएगा कि गलत बैठा रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि हाँ, कभी कभी P नॉट Q नॉट भी 600 हो सकता है, P नॉट Q1 भी 600 हो सकता है, बट बहुत रेयर केसेस में होता है। सो व्हेन यू पुट दिस वैल्यूज़ हियर इन द फॉर्मूला, यू हैव टू बी केयरफुल कि हाँ कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है, चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, ये चला गया, और तो कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है। सो वी हैव इज रूट अंडर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। सो इट विल बी हाउ मच, 0 6 9 18 27 36 37 डिवाइडेड बाई दिस 7 14 21 0 0। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया इंटू 100। अब सो हेयर द रूट डिवाइड का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 1.7904 इंटू 100। ओके, नाउ लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहाँ पे क्या है ना, हम लोग रूट कर रहे हैं। सो हमेशा जब भी आप रूट में कोई भी चीज़ करो ना, अगर उसका वैल्यू पॉइंट्स में है तो हमेशा पॉइंट के बाद में आपको करना क्या है, आपको एटलीस्ट 3 या 4 डिजिट लेने हैं आफ्टर द पॉइंट वैल्यू। ठीक है, पॉइंट के बाद में हमेशा आपको 3 या 4 डिजिट्स लेने हैं। मैं सेफ साइड में रहने के लिए हमेशा 4 डिजिट लेती हूँ। ठीक है, तो आपको भी वैसा ही करना होगा। सेम अगर यहाँ से आप रूट से निकालोगे, सो यू विल गेट 1.3381 इंटू 100।
ठीक है। यहाँ पे भी रूट से निकालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको पॉइंट के बाद में 4 वैल्यूज़ लेनी है। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल सिंपली गेट द आंसर इज 1.3381। इसका मतलब क्या है, पहले क्या था 100 रुपीज़ अगर प्राइस था, जो भी P0 का ईयर दिया होगा, P1 में क्या हो रहा है 133, मतलब 33 रुपीज़ बढ़ गया है प्राइस में। ठीक है। सो यहाँ से ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ है। अगर ये 100 के नीचे होता, 99 होता, तो 1 रुपीज़ से डिफ्लेशन हुआ है, हम लोग समझते। ठीक है, फाइन। सो विद दिस वी आर डन विद द फिशर्स इंडेक्स नंबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ weighted average of price relative method. For weighted average of price relative I have again taken the same formula. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समीशन RW डिवाइडेड बाई W। समीशन W, R क्या है, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। W क्या है, वेट, दैट इज P0 Q0। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, P0 Q0 हम लोग वेट लिए हैं। ठीक है, क्यों वेट लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी वेट नहीं दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, उन लोग क्वांटिटीज़ के स्पेस के जगह पे हम लोग को क्या करते हैं, डायरेक्टली वेट प्रोवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को वेट निकालना होगा। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, फॉर्मूला पता है, P0 Q0 करने से वेट मिल जाता है। सो हम लोग के पास वेट कितना हो गया है, दिस P0 Q0 is equal to 600. Now we need to find out R. So R का फॉर्मूला पता है, R is equal to P1 divided by P0 into 100. So करते हैं P1 divided by P0. So 20 divided by 10 into 100 we will have how much, 200. Next 30 divided by 20 into 100 we will have how much, 150. ठीक है, फिर लास्ट क्या है, 40 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 वी विल हैव पॉइंट वैल्यू हियर, 400 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू हाउ मच, 133.3। लास्ट कितना है, 50 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 विल गिव यू, अगेन आई थिंक दिस विल बी इन पॉइंट वैल्यूज, 2 5, ओके नो 2 5, यस 25, सो इट विल बी 15125। ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे R मिल गया। ठीक है, लेकिन R का समीशन नहीं करना है, RW करना है हम लोग को। सो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो RW इज इक्वल टू जस्ट मल्टीप्लाई। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू टेक abrupt number from your mind. Okay, so here what's happening, the numbers are very huge. Okay, so I have done the calculation for you all and I have made a summation for which I have get at the last value is 76399.4. now after all this we can just put the values here in the formula. So we will have what, 6399.4 divided by summation W, that is 600. We will get the final value as 127.32. So the final answer is not abrupt, you see, 127.32. It's a good answer. Why? Because we know that 100 रुपीज़ के चेंज होने पर 27 रुपीज़ का इंक्रीजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस में। So this is the final answer. Fine. This problem arises here. You will not get this kind of numerical in the exams. Okay, the questions will not give you so much abrupt answers like this 76399.4. ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको हमेशा सिंपल आंसर ही मिलने वाला है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द माइंड, और कैलकुलेटर रहेंगे तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करके भी डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। फाइन। With this we are done with today's class, that is we have discussed the weighted index number and the different numericals under it. In the next class we will be discussing the features index number, why it is called specifically why it is called as an ideal index number. It has its own numerical under it. So join the channel for the next class. Thank you everyone for listening to me. If you find anything that that is difficult for you to understand, you can comment down the things you have in the comment section. I will reach out to you all. Thank you.